This is lecture 2. Lecture 2. We will try to reach up to Battle of Buxar. So, by reaching up to Battle of Buxar, we will have to see Battle of Palasi, and also third Battle of Panipat. As it was fought in year 1764, 1757, and it was fought on 1761. So, Battle of Panipat was fought between Maratha and Afghan, that is Ahmad Shah Abdali. So, and the Battle of Palasi was fought between Robert Clive and Sirajuddaula. Subsequently, we will see we will see Battle of Buxar as well. So, I will tell you two things. If any one of you are following Lucent, which I know few of you are doing it, okay, it's good, okay. But Lucent is merely about facts, and these facts in your examination are 90% true, okay. So, what is the actual book which you should refer is NCRT, okay, because this is mere assemblance of facts, and I have seen few of you in the chat section putting things. So, when I'm teaching, don't put those things. You can ask in the doubt when I give you that opportunity. Okay, let's begin the class. So I have told you that the death of Aurangzeb, with the death of Aurangzeb, death of Aurangzeb, Jeb, in 1707, modern history of India starts syllabus wise. Okay, actually, it is modern history of India or not. That is something which has been much debated. Okay, as per the syllabus, it is known as modern history of India. That's it. So after him, the person who came to throne was Bahadur Shah one 1707 to 1712. His big achievement was that he released Sahu. Sahu was grandson of Shivaji, and he emerged as the leader of Maratha later on. Okay. Bahadur Shah died. He was already 63 in 1707. So he died. Then he was followed by Jahandar Shah, 1712 to 1713. Okay. Jahandar Shah में सिर्फ important यही है कि he came to the throne with the help of Zulfikar Khan, who was a
मुगल नोबेल ऑफ पर्शियन डिसेंट। तो आप ये समझ जाओ कि नोबेल्स का पोजीशन अब ऊपर चला गया, क्योंकि दे स्टार्टेड डिसाइडिंग हु द किंग विल बी। तो यही बस इसकी इंपॉर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू that in the Mughal court there was conflict between the nobles, among the Persians, among Turanians, among the Hindustani Musalmans। तो जब नोबेल बादशाह को बनाएगा तो डेफिनेटली इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि बादशाह अपने दम पे बादशाह नहीं बना है। ठीक है। तो दिस जहांदार शाह वाज रिप्लेस्ड बाय फरूक शियार, 1713 टू 1719। देखो, औरंगजेब के समय में क्या हुआ था ना, कि इम्पोजिशन ऑफ जजिया हो चुका था। ठीक है। दैट मीन्स नॉन मुस्लिम वेर टैक्स्ड फॉर फॉलोइंग ए डिफरेंट रिलीजन। जजिया। ठीक है। बोलते इसको जजिया है, प्रोनाउंसिएशन लिखना इसका जिजिया होता है। ठीक है। सो बहादुर शाह ने आते साथ उसको हटाने का सोचा, पर हटाया जानदार शाह ने। ऐसा नहीं है बहादुर शाह ने हटाने का सोचा, ठीक है, पर उसको इन मतलब इन ऑन पेपर हटाया जहांदार शाह ने। तो फारूक शियार आया। फारूक शियार आया। फारूक शियार वॉज बॉट बाय सैयद ब्रदर्स। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है। एंड सैयद ब्रदर्स ऑल्सो रिमूव्ड फारूक शियार। ओके। लेटर ऑन। ओके। एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। फॉर ऑलमोस्ट 30 years मोहम्मद शाह रंगीला वॉज देयर। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। ठीक है। नादिर शाह वॉज किंग ऑफ पर्शिया। ठीक है। बिफोर नादिर शाह देयर वॉज ए डायनेस्टी इन पर्शिया, दिस वॉज नोन एज सफाविद डायनेस्टी। ये याद रहेगा ना आपको, सफाविद डायनेस्टी? याद रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। देखो, सफाविद डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे मुगल डायनेस्टी इंडिया में थी, उसी तरह सफाविद डायनेस्टी ईरान में थी। ठीक है। इसका एंड जो हुआ था वो नादिर शाह के समय हुआ था। नादिर शाह वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ सफाविद डायनेस्टी, and he became the ruler of Iran after the end of Safavid dynasty. He was actually a son of Shepard. He was son of Shepard, not of royal lineage. देखो, हिस्ट्री में आप जब भी पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि लीनियज है।
हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लीनेज का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो जो भी किंग नॉन रॉयल लिनेज से आता है ना, तो उसमें दो चीज आप देखना। एक तो उसने बहुत मेहनत किया है। ठीक है। दूसरा, ही ट्राइज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द रॉयल डायनेस्टी थ्रू मैट्रिमोनी। ठीक है। तो नादिर शाह क्या करता है, जब दिल्ली में इन्वेड करता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मोहम्मद शाह रंगीला की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करा देता है। ठीक है। तो सफाविद डायनेस्टी जितना स्ट्रांग था, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग एक जमाने में मुगल डायनेस्टी था। तो मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है, या जब बहादुर शाह आया दिल्ली में, तो कहा जाता था फ्रॉम इस्तांबुल टू टोक्यो। इस्तांबुल में कौन सा डायनेस्टी था? ओटोमन। ठीक है। और टोक्यो में था ईदो, आईडीओ या ईडीओ करके ईदो डायनेस्टी थी। ठीक है। इस दोनों के बीच में अगर कोई शहर देखने लायक था, अगर कहीं रिचनेस थी, तो वो दिल्ली में थी। तो इट वॉज द वेल्थ ऑफ दिल्ली विच अट्रैक्टेड नादिर शाह एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी दैट ही इन्वेडेड दिल्ली। एंड आफ्टर इन्वेडिंग दिल्ली, कम से कम इसने 70 करोड़ रुपया है ना कमाया है। लेके चला गया 70 करोड़ रुपया। ठीक है। दिल्ली को इन्वेड करके। इतना पैसा था उस जमाने में, 70 करोड़ रुपया, जो इसने सिर्फ दिल्ली से उठाया, कि 3 साल तक पूरे के पूरे ईरान में कोई टैक्स कलेक्शन नहीं किया गया। देयर वॉज ए टैक्स हॉलीडे इन ईरान। ठीक है। तो टैक्स हॉलीडे हो जाए तो बहुत ज्यादा क्या डेवलप होगा? आपके यहाँ इंडस्ट्री, कमर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये सब डेवलप होगा। तो उसने 3 साल तक टैक्स हॉलीडे दिया। ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद सिक्स रूलर जो आया आफ्टर औरंगजेब, वो था अहमद शाह। अहमद शाह। ठीक है। 1748, 54। ठीक है। उसके बाद आया आलमगीर, 1748, 1759। ठीक है। फिर आता है आपका शाह आलम। आप बोलोगे कि सर आप इतना क्यों लिखवा रहे हो, तो अब बताता हूं आपको ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं। सिर्फ लिख लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। आलमगीर और शाह आलम जो था, दे वेर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। नोबल्स। ठीक है। नादिर शाह जब अटैक किया था ना, तो 1739 में अटैक किया था उसने। ठीक है। 1737 में ऑलरेडी मराठास दिल्ली में अटैक किए थे। अटैक नहीं किए थे, रेड किए थे। ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया था। ठीक है। देखो हुआ क्या, कि जब मराठा रेड किए ना दिल्ली में 1737 में, तो उस समय बाजीराव पेशवा, जो मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, वो वाला पेशवा है ना, उसके बारे में मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में उसने पूछा कि ये कौन है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी लोग बोले सर कोई नहीं है, छोटा मोटा है, दक्खन का आदमी। तो ये बात बाजीराव पेशवा को पता चली। तो बाजीराव पेशवा है ना, दिल्ली के बाहर आ गया हंटिंग करने। हंटिंग ओनली विथ वेरी लेस नंबर ऑफ कैवलरी। और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग के चला गया आगरा। ये उसका दहशत था। मराठास का ये दहशत था कि मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया।
और उसके पूरे के पूरे नॉबल्स छोड़ के भाग गया आगरा। वो सिर्फ शिकार खेलने आया था दिल्ली के बाहर। ठीक है, ये उसकी दहशत थी। तो मराठा रेड भी किए बाद में दिल्ली, और मुगलों के उसको उसकी औकात बता दिए कि भाई हमसे पावरफुल तुम नहीं हो। तो उसके बाद नादिर शाह ने अटैक किया। ठीक है, और उसके बाद अहमद शाह आया, चला गया। आलमगीर आलम आया। इसको और शाह आलम को क्या हुआ कि इसको इसके नॉबल्स लोग ही ब्लाइंड कर दिए कि तुम साले देख ना पाओ और हम रूल करें। ठीक है, तो शाह आलम को जब ब्लाइंड किया गया तो ये दिल्ली से भाग करके चला गया इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद वॉज अंडर द नवाब ऑफ अवध, जिसको कभी कभी पेपर में औध भी दिखाएगा, तो वहां पे बोलना मत कि सर आपने AWADH लिखा था, यहाँ पे OUDH है। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दोनों चीज दिख जाएगा। ल्यूसेंट पढ़ोगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जब ब्लाइंड हो गया शाह आलम, तो इसी के कार्यकाल में आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है, और इधर बैटल ऑफ पानीपत होता है। इधर प्लेसी। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत होता है और बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठा और अफगान्स के बीच में। ठीक ठीक है, ये होता है 1761 में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है आपका 1764 में। ठीक है, किसी ने बोला सर बैटल ऑफ पलासी, हाँ बैटल ऑफ पलासी होता है, पर वो 1757 में होता है। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, वो होता है नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी कोई बैटल था ही नहीं। इट वॉज द डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेसी बाय रॉबर्ट क्लाइव। What was doubtful in Battle of Plassey was confirmed in Battle of Buxar। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में बनता है ट्रिपल अलायंस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपका बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। यहां तक समझ में आया तो बोलिए। बैटल ऑफ प्लासी में मुगल एम्परर का कोई यूज है ही नहीं। ठीक है, एक तो मुगल एम्परर अंधा हो चुका है। ठीक है, दूसरा खुद अपना जान बचा के भागा हुआ है। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी में कोई लड़ाई नहीं हुई है। ठीक है, इनफैक्ट 500 पीपल फ्रॉम द नवाब्स आर्मी गॉट किल्ड, और नवाब का जो 90% फोर्स था ना, वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था बैटल में। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट है? नाउ आई एम ओपन फॉर एनी डाउट फॉर यू टू आस्क। हेलो सर। हाँ, वी विल रीड अबाउट बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। अभी बताइए। सर ये आलमगीर नाम 1 2 जो रखा है वो कैसे पड़ा है? वो तो मुझे नहीं पता कि कैसे उसका नाम आलमगीर 1 और 2 पड़ा, और उसका नाम आलमगीर था। ठीक है, आलमगीर आपको यहाँ पे इसलिए टेंशन हो गया होगा क्योंकि जो औरंगजेब था ना, उसका भी टाइटल आलमगीर था। आलमगीर औरंगजेब। ठीक है, यहाँ पे नाम कैसे पड़ा है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। अकबर सर का उसका नाम जहाँ तक ये जलालुद्दीन उसका मोहम्मद। क्या? सक्सेसर को पढ़ रहे हैं कि उसका बेटा को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं?
सक्सेसर को पढ़ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत। आपको सिर्फ बताया गया कि मुगल एम्परर जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद मुगल एम्पायर में क्या हुआ है। ठीक है, ये यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे कभी। यूपीएससी विल आस्क यू अबाउट बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पानीपत। और सर ये जजिया टेक्स्ट को कौन इंट्रोड्यूस किया और कौन उसको डिक्लाइन कर दिया? वो तो बताया मैंने आपको कि जजिया को इंट्रोड्यूस औरंगजेब ने किया था। ठीक है, सेकेंड टाइम। ठीक है, औरंगजेब से पहले अकबर के समय में उसको रिमूव किया गया था, और जब अकबर से पहले दिल्ली सल्तनत आई थी तब जजिया टैक्स लगा था। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने लगाया है, अलग अलग लोगों ने हटाया है। ठीक है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बस यही पता चलेगा कि अकबर ने उसे हटाया। ठीक है, और उसके बाद उसको हटाया है आपका जानदार शाह ने। ठीक है, सर औरंगजेब ने बीच में लगाया था। ठीक है, ठीक है सर। आपको जजिया टैक्स भी, हाँ, जब बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे ना तब ट्रिपल अलायंस बता देंगे आपको। ठीक है, अभी पढ़े नहीं है, अभी सिर्फ मेंशन किया है। ठीक है, आप लोग को हिस्ट्री का नोट्स मिल गया है, पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है? मिला है सर। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का या एंशिएंट हिस्ट्री का या मिडाइवल हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 9 क्वेश्चन उसी पीडीएफ से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी उससे बाहर से आ सकता है, बस एक क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 1 क्वेश्चन में कम आउटसाइड यूपी स्टेट पीसीएस से कुछ भी पूछ लेगा, मैं क्या कर लूंगा। ठीक है, तो आप 10 में से 9 करेक्ट कीजिए, एक के पीछे परेशान होंगे तो बाकी फिर 90 छूटेगा। ठीक है, अभी सिर्फ मेंशन किया है बैटल्स के बारे में, बैटल्स पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब देखो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट द मुगल एम्पायर हैज डिक्लाइन। ये मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं या छोड़ दूं इसको, ये वाले पोर्शन को छोड़ दूं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ अदर स्टेट्स, डायरेक्ट अदर स्टेट्स में आ जाता हूं, ये मेंस में है। पर आप नहीं समझोगे, नहीं इस चीज को देखोगे तो फिर दिक्कत होगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, जो मुगल अंपायर था वो ऐसा था इंडिया में। ठीक है, आपको दिखाया गया है। तो ये जब डिक्लाइन हुआ तो 3 4 स्टेट का जन्म हुआ। ठीक है, एक है आपका हैदराबाद, दूसरा है आपका बंगाल, तीसरा है आपका अवध, औध। ठीक है, तो इसके इमरजेंस का कारण क्या था ये बता देता हूं आपको। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट? कल पढ़ाए हैं, आप में से भी कोई ल्यूसेंट देख करके बता रहा था। हु वॉज किलिच फाउंडर खान। ऑफ हैदराबाद? किलिच खान। सर क्लिंच खान। ठीक है, एनसीईआरटी का एक पीडीएफ मैंने आपको दिया है, वहां पे क्लिंच खान कहीं मेंशन्ड नहीं है, इसका दूसरा नाम मेंशन्ड है, तो दैट में कम इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट इज नॉट मेंशन्ड इन ल्यूसेंट। ठीक है, तो क्लिंच खान का दूसरा नाम क्या है वहां पे? असफ जहाँ। मोहम्मद साहब न असफ साहब आसफ जा। ठीक है, इसको ये सब टाइटल दिया गया था मुगल एम्परर के द्वारा। और अगर एग्जाम में आया आसफ जा तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, तो बेटा आपने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं।
ठीक है, मैंने तो दे दिया। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है ना आपके एग्जामिनेशन का वही सच है, जो मैं नोट्स में लिखूंगा, ल्यूसेंट नोट्स में लिखेगा, या किसी भी और कोचिंग सेंटर के नोट्स में होगा, या कोई भी बुक होगी जो मार्केट में मिल रही है, वो सच नहीं है। आपके एग्जाम का सच सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। ठीक है, आपने कभी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया होगा यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न पे। 2017 में उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया था, तो लड़का लोग कहीं कहीं से खोज खोज के बोला कि ये आपका आंसर गलत है। यूपीएससी एक ही आंसर दिया था, एनसीईआरटी में है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो हैदराबाद वाज फाउंड बाय क्लिंच खान ऑल्सो नोन एज आसफ जा। इसको क्लिंच खान क्यों भी लिखा जाता है, क्लिंच खान, क्लिंच मिल्क खान। ठीक है, ठीक है। औध वाज फाउंडेड बाय सादत खान। ठीक है, बंगाल वाज फाउंडेड बाय, हु वाज फाउंडर ऑफ बंगाल? जफर खान, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, जफर खान। मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान फाउंडेड बंगाल। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या, ये सारे स्टेट है ना आपका 1720s के बाद फॉर्म होते हैं। ठीक है, 1707 औरंगजेब किल्ड, 1719 फारूक शियार रिमूव, 1720s सैयद ब्रदर्स किल्ड। जब सैयद ब्रदर्स को किल्ड कर दिया जाता है 1720s लिखा हूं, क्योंकि ये 4-5 साल लगते हैं इस सैयद ब्रदर्स को मरने में। तो बोलेगा सर 4-5 साल क्यों लगेगा? तो सैयद ब्रदर में एक ब्रदर था हुसैन अली। ठीक है, ये एक्सेप्शनल लीडर था, जनरल। ठीक है, तो इसको धोखा से मार दिया। इसका भाई जो था अब्दुल्ला खान, बड़ा भाई, वो एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल था। ठीक है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आता था। इसको जेल में रख दिया 2-3 साल, तो उसके बाद इसको जहर दे के मार दिया। तो इनके मरने के बाद से राइज ऑफ नेशन स्टेट शुरू हो जाता है, राइज ऑफ न्यू स्टेट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी थे, मुर्शिद कुली खान, आसफ जा, सादत खान, ये सब कौन थे? ये सब उस जमाने का आईएएस ऑफिसर था। ठीक है, मुगल किंगडम में जो आईएएस ऑफिसर थे उसको कहते थे मनसबदार। मनसबदार्स। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाना होगा। आईएएस के पास क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आईआरएस के पास क्या होता है? रेवेन्यू। आईपीएस के पास क्या होता है? उस जमाने में पुलिस और मिलिट्री में फर्क नहीं था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों अलग अलग बनाया गया है? एनी आइडिया? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग क्यों बनाया गया है? जब देश का प्रधानमंत्री एक अकेला आदमी हो सकता है, तो ये तीनों पावर एक आदमी को क्यों नहीं दे दिया जा सकता है? एक डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी रहेगा, क्यों नहीं दिया जा सकता है, बताइए मुझे। Why civil administration has to be the IAS, revenue is to be the IRS, and military administration, that is police administration, with IPS? Why not given to one person?
नो, द पर्पस इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड। प्राइम मिनिस्टर एक आदमी हो सकता है, तो ये तीनों एक आदमी क्यों नहीं हो सकता है? द पर्पस इज इन टू इंश्योर कि करप्शन ना हो जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। तो रेवेन्यू को कहा गया दीवानी। दीवानी। मिलिट्री को कहा गया फौजदारी, मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को फौजदारी। ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया सूबादारी। इस तीनों को जो आदमी डिवाइस किया गया था ना, जिस आदमी ने डिवाइस किया था, सूबादारी, दीवानी और फौजदारी, ठीक है, से मिल के बना था मनसबदारी। ठीक है, मिल के बना था मनसबदारी। ठीक है। तो अकबर के समय में या औरंगजेब के समय में या शेर शाह सूरी ने जब डिवाइस किया था इसको, तो मनसबदार आप हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको सूबेदार बनाया जा सकता है, हेड ऑफ प्रोविंस। आपका डेप्यूटी होगा एक। ठीक है, डेप्यूटी होगा। ठीक है, उसको दीवानी राइट्स मिलेगी। ठीक है। फौजदारी आप बहुत एक्सेप्शनली अगर मनसबदार हैं तो फौजदारी मिलेगा। ठीक है। मतलब एक आदमी के पास तीनों पावर नहीं मिलते थे औरंगजेब के समय तक। ये डिवाइस किया गया था मुगल्स में, या शेर शाह के द्वारा जब डिवाइस किया गया था ये सिस्टम, तो कभी भी, ऐसे तो क्रेडिट अकबर को दिया जाता है पर इसका ओरिजिनल क्रिएटर शेर शाह है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, हु डिवाइस द मनसबदारी सिस्टम, आंसर है अकबर। ठीक है, शेर शाह आंसर नहीं है, क्योंकि शेर शाह को टाइम ही नहीं मिला था इसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, उसने ऑन पेपर खाली ये काम किया है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट अकबर ने किया है। ठीक है। तो उसको जब शेर शाह के समय में उसने ऑन पेपर किया, रियलिटी में किया नहीं, तो पता नहीं किसको बनाया किसको नहीं बनाया, किसको क्या पावर दिए। ठीक है। तो अकबर ने क्या किया था, विद शेर शाह का जो एक मंत्री था राजा टोडरमल, उससे मिल करके बनाया। ठीक है। तो अकबर ने क्या किया कि अगर आपको प्रोविंस का गवर्नर मिल जाता है, सूबादारी, गवर्नर ऑफ प्रोविंस, ठीक है, आप मर जाओ पर आपको दीवानी राइट्स नहीं देगा। ठीक है। दीवानी क्या है, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। फौजदारी के लिए भी कोई और आदमी को रख देगा। ठीक है। पर आप अकबर का बहुत फेवरेट आदमी है, तो आपको सूबादारी और फौजदारी मिल जाएगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा। रेवेन्यू क्या है, पैसा है। पैसा अगर मिल जाएगा तो आप राजा नहीं बन जाइएगा। ठीक है। लेटर औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ ना, कि बाकी जो मुगल्स थे उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही मनसबदार को, दार को सूबादारी, दीवानी, फौजदारी, ठीक है, एक ही मनसबदार के हाथ में दे दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन डेक्कन, क्लिंच मिल्क खान, आसफ जा, क्लिंच खान, एक आदमी है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में आएगा, ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है। इसी के हाथ में आ गया, फौजदारी भी आ गया, दीवानी भी आ गया, सूबादारी भी आ गया। ठीक है।
ये एक्चुअली क्या था ना, क्लिंच मिल खान, इसको टाइटल मिला निजाम उल मुल्क। ठीक है, ठीक है, इसको टाइटल मिला निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, क्लिंच खान कहाँ था, दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में क्या हो रहा था कि रोज लड़ाई चल रहा था। पर्शियन नोबल, हिंदुस्तानी मुसलमान नोबल, सैयद ब्रदर्स का रोज लड़ाई चल रहा था। ये परेशान हो गया। ठीक है, और तुरानियंस का रोज झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो ये क्लिंच खान सोचा कि भाई दिल्ली में रहना फालतू का काम है, क्योंकि जो आपका 1790 से लेके 1748 तक आदमी आया ना दिल्ली के तख्त पे, उसको आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट था, लेकिन मोहम्मद शाह, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में तो इंटरेस्ट था, पर उसको राजपाट में इंटरेस्ट नहीं था। उसको कुछ भी बोलता था क्लिंच खान तो बुरा लग जाता था। जैसे हम बोलते हैं, कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि भाई मेहनत करो, तो वो भी बोलता था मोहम्मद शाह को, भाई तुम मेहनत करो, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको बुरा लगता था। उठ करके ये आ गया दिल्ली से, भाग गया दिल्ली से, बोला हम जा रहे हैं हंटिंग के लिए। ठीक है, और ये भाग के चला गया हैदराबाद। तभी हंटिंग के लिए लोग 2-3 महीना के लिए जाता था बाहर। तो वो हैदराबाद चला गया और वहां पर जाकर के निजाम बन जाता है। ठीक है, निजाम उल मुल्क का टाइटल इसको बहादुर शाह देता है। हैदराबाद आता है, यहाँ पर गवर्नरशिप ले लेता है। जो लोकल गवर्नर था, डिप्यूटी गवर्नर, उसको मारता है और इसको पैसा दे देता है। ठीक है, पैसा दे देता है कि भाई हम यहाँ का गवर्नरशिप ले लिए हैं, आपके खिदमत में इतना पैसा दे रहे हैं। तो बोला ठीक है, आप बन जाइए यहाँ का गवर्नर। अब क्या कर सकता है मोहम्मद शाह, कुछ नहीं कर सकता है, उसको फुर्सत नहीं है इंजॉयमेंट से। ही इज बिजी विथ नॉच गर्ल्स, ही इज बिजी विथ रेसलिंग फाइट, ही इज बिजी विथ जगलर शोज। ठीक है, तो उसको फुर्सत नहीं है, तो इसने पैसा इसको भेज दिया। ठीक है, तो ये शांत हो गया। तो ये आके हैदराबाद में अपना स्टेट बना लेता है। ठीक है, और दोबारा कभी मुगल एम्परर का कोई बात या डायरेक्शन नहीं लेता है, कोई बात नहीं सुनता है। इंडिपेंडेंटली रूल करता है इन द नेम ऑफ मुगल एम्पायर। नाम लेता है मुगल एम्पायर का, पर सुनता कोई बात नहीं है। उसको पता है ये नालायक है, तो सुनने का कोई जरूरत नहीं है। रूल करो पर सुनो नहीं। उसके नाम में रूल करो। क्यों उसके नाम में रूल करो? क्योंकि मुगल नाम में बहुत दम था। ठीक है, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं ना और मैं राजपूत के एथिक्स का बात करता हूं, तो कुछ लोगों को लगता है कि सर राजपूत का साइड ले रहा है क्योंकि उसके टाइटल सेम है। भाई कोई साइड नहीं लिया जाता है किसी का भी। ठीक है, टाइटल सेम होने से आदमी वही नहीं हो जाता है। अगर होता भी है तो वो सेम देता नहीं है। लेकिन जब आप लोग को अभी लग सकता है, तो उस जमाने में मुगल टाइटल का कितना रुतबा होगा। ठीक है, तो दे रूल्ड इन द नेम ऑफ मुगल्स, रूल्ड इन नेम ऑफ मुगल, took no direction from Mughal king, from Mughals. Why? Because these rulers or governors were capable. जैसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कल मैसेज किए, सर एंशिएंट से स्टार्ट कर दीजिए। भाई मुझे पता है ना कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दे वेर कैपेबल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मुगल एम्परर वेर इनकैपेबल आफ्टर औरंगजेब। दे वेर इनकैपेबल आफ्टर औरंगजेब। तो उसे डायरेक्शन नहीं लेना है, only ruling in their name, because that time Mughal name had much currency among general public.
आप में से कोई ताजमहल गया है? आगरा यस फोर्ट सर। देखा है? यस हुमायूं सर। टॉम्ब देखा है? ठीक है। यस सर। तो अभी कैसा लगता है देख करके? सर लगता ये है ना कि इनॉर्मस है, बहुत बड़ा है। तो उस जमाने में जितना भी मुगल आर्किटेक्चर रहा होगा, फोर्ट्स, ब्रिज, सराय, पार्क्स, तो कितना बड़ा लगता होगा। तो जनरल पब्लिक के मन में क्या होगा कि भाई मुगल्स जो हैं, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि मुगल्स के पास टाइटल था, उसको कहते थे जिल्ले इलाही। इसका मतलब होता था शैडो ऑफ गॉड। ठीक है। और वो लोग आकर के पब्लिक को दर्शन देते थे। ठीक है। पब्लिक के दर्शन का नाम मतलब होता था झरोखा दर्शन। ये होगा। आपने रामदेव बाबा के बारे में सुना है? सुना होगा। तो रामदेव बाबा को कितना इज्जत मिलता है आज के डेट में? तो सोचो उस जमाने में मुगल एम्परर को कितना दर्शन, कितना इज्जत मिलता होगा पब्लिक से। तो आप लोग आदत के अनुसार बोलेगा सर पर वो तो मुस्लिम था। हिंदुइज्म में इस चीज का प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो। ठीक है। तो जनरल पब्लिक क्या थी? हिंदू थी। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेगा सर आप झूठ बोल रहा है, आप प्रमोट कर रहा है हिंदुइज्म को। तो लो ये भाई एग्जाम्पल दे देते हैं। साईं बाबा का नाम सुने हैं? साईं बाबा का नाम सुने हैं कि नहीं? जी। टेम्पल है, हर हिंदू इसको पूजता है। ऋतिक रोशन का तो फेवरेट गॉड है। इसका एक्चुअल नाम जानते हैं क्या है साईं बाबा जी का? चांद मोहम्मद। टुडे ही इज ए हिंदू गॉड। ठीक है। इट इज हिज एक्चुअल नेम चांद मोहम्मद। टुडे देयर इज ए टेम्पल इन शिरडी, worshipped by all high and mighty people. ठीक है। एंड टुडे he has assumed the status of god in the name of in among Hindus. तो यहाँ पे भी जिले इलाही शैडो ऑफ गॉड जो थे, उसको वाकई शैडो ऑफ गॉड माना जाता था। ठीक है। तो मुगल के नाम में इतना प्रेस्टीज था। ठीक है। आप बोलोगे सर हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लो सुन लो भाई। मनसबदार, ये उस जमाने का आईएएस ऑफिसर था जिसके पास सारा राइट्स था। ठीक है। किसका? आईआरएस का भी राइट्स था, आईपीएस का भी राइट्स था। ये जब मुगल कोर्ट जाता था तो ये कैसे ग्रीट करता था मुगल एम्पायर को? कैसे ग्रीट करोगे आप राष्ट्रपति को? यू विल बी एज एन आईएएस ऑफिसर वर्किंग अंडर द सील एंड वारंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप राष्ट्रपति, आप आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आ जाते हो ना, तो आप किसके नाम पे रूल करोगे? मतलब काम करोगे? नॉट अंडर द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफ चीफ मिनिस्टर। यू विल बी वर्किंग अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको चीफ मिनिस्टर से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आपने करप्शन किया है तो डर लगेगा, करप्शन नहीं किया है ना तो आपको कुछ डर नहीं लगेगा। क्यों? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हो। आपका ट्रांसफर, ऑर्डर, दिल्ली आना सारा प्रेसिडेंट के ऑफिस से आएगा। ठीक है। आपको कोई कुछ परेशान नहीं कर सकता। ठीक है। आपकी नौकरी प्रेसिडेंट के ऑफिस से ही जाएगी और कहीं से नहीं जाएगी। ट्रांसफर तो स्टेट में होता रहेगा, आप ऑल इंडिया सर्विसेज में हो, जो कार्डर मिलेगा वहां होगा। पर आपकी नौकरी और आपका अपॉइंटमेंट दोनों प्रेसिडेंट देते हैं। लेते भी प्रेसिडेंट है, देते भी प्रेसिडेंट है। तो आप प्रेसिडेंट को कैसे जाके मीट करोगे? हैंड शेक करोगे। ये मनसबदार कैसे मीट करता था मुगल एम्परर को मालूम है? पाबोश। पाबोश का मतलब होता है, समझ में आया?
और पाबोश में भी हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाएगा कि आपको पैर चूमने मिल जाएगा, नहीं देगा। उसमें भी उस दिन किसी मनसबदार को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पागल है मुगल एम्परर, रोज हर 50,000 आदमी से अपना पैर ही चुमवा रहा है। ठीक है। सजदा, सिजदा। ठीक है। आपको पाबोस करने का मौका तब मिलेगा जब मैं आपको बुलाऊंगा। आप दूर खड़े रहेंगे तो वहीं से सजदा करेंगे। ठीक है, एकदम जमीन पे लेट जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे। ठीक है। तो इसका मॉरल ही तोड़ देता था मनसबदार का। ठीक है, पब्लिक के नजर में ये क्या है, मेरा पैर चूम रहा है। तो किसी भी आदमी को रूल जो करना पड़ता था वो मुगल अथॉरिटी के अंदर करना पड़ता था। सच वॉज द नेम एंड ऑरा ऑफ मुगल्स। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अपॉइंटेड एज सूबेदार, गवर्नर। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो मिल गया, इसको मिल गया दीवानी भी, और इसको मिल गया फौजदारी भी। ठीक है। इससे क्या मिला सूबेदार को? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के कारण क्या हुआ? कॉन्सोडोल कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है। एट हुज कास्ट? एट कॉस्ट ऑफ मुगल एम्पायर। और इसकी वजह से क्या हुआ? निजाम बना निजाम उल मुल्क हैदराबाद, बुरहान उल मुल्क अवध, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपके मेंस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना दीजिएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। जो अभी तक समझाया है वो बता दीजिएगा, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है। यहां तक समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक है नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल। तभी इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस क्या था? बंगाल था। ठीक है, द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स इन टेक्सटाइल, कॉटन। द कॉटन ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी वॉज नोन एज मलमल। ठीक है। आज भी आप अगर बंगाल रीजन में जाओगे तो वहां का जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो अल्टीमेट लेवल का है। टिल टुडे ऑन दिवाली आई वाज स्पीकिंग विथ एडिशनल सेक्रेटरी टेक्सटाइल। ठीक है। सी आई वॉज एट माई सिस्टर्स प्लेस, तो वो आई थी लंच डिनर करने, तो हम लोग 4 घंटे बात किए। वी वेर ओनली टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मैंने एक वीडियो भी डाला है सेकेंड वाले ग्रुप में, जहां पे मैंने बताया है कि व्हाट सी इज टॉकिंग अबाउट नेशनल हैंडलूम डे। तो मेरे 4 घंटा उनके साथ यही बात चल रहा था, टेक्सटाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। ठीक है। सी वॉज वेल अवेयर ऑफ निशी टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, आदि टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, इदुमिश्मी टेक्सटाइल। ठीक है। सी वॉज टी से जो एक टाइप है ट्विंसा, उसके टेक्सटाइल के बारे में उनको पूरा अरुणाचल का डेटा पता था। ठीक है। एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस।
ठीक है, तो आप समझ जाओ कि इस बार जो जीआई टैग मिला है ना, उसका पर्पस क्या है? उसका सिंपल पर्पस है ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना। ठीक है, वो बोली कि गवर्नमेंट चाहती है, वो बताई कि एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस करें ताकि गवर्नमेंट उनको ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। तो लोकल लोग को बोला ना कि हम तुम्हें मार्केट देंगे, हम तुम्हारा एक्सपोर्ट करेंगे, आप ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो लोकल लोग बोला कि नहीं, हमको इतना का जरूरत नहीं है, हमारा सेल हो जाता है। ठीक है, तो ये वो बता रही थी कि एक सोसाइटी का भी फीचर होता है कि उनका भी एक लिमिटेशन है, इट विल टेक टाइम फॉर सोसाइटी टू थिंक एट ए इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ ऐसा है, क्योंकि हेडोनिस्टिक सोसाइटी है, ज्यादा नहीं सोचता है इन सब मामलों में, इट विल टेक टाइम। तो अभी भी बंगाल का जो मलमल है, उसका वही बहुत बड़ा वैल्यू है। आप कभी पहनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ वेयर किया है। तो इसका है ना, ड्यूरिंग मौर्यन टाइम ग्लोबल डिमांड था, तब से ग्लोबल डिमांड था। तो मौर्यन के टाइम में इसको मलमल नहीं बोलते थे, इसको सालुक बोलते थे। ठीक है, ये बहुत पतला कॉटन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका 2-3 लेयर पहनना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो उसको डाई किया जाता है ऐसे कलर में कि ट्रांसपेरेंसी नहीं जाए। पर उस समय पूरे यूरोप में सालुक का ऐसा डिमांड था ना कि मलमल कॉटन का, कि इसके बदले में वो गोल्ड देते थे। तो उधर से बुलियन आ रहा है और इधर से ट्रांसपेरेंट कपड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर के भी वहां बहुत मजाक उड़ाया गया था कि तुम यहां से पैसा देते हो और वहां से न्यूडिटी लेते हो। ठीक है, ये दूसरी बात है, ये यूरोपियन थिंकर्स लोग लिखे हैं उस जमाने में। ठीक है, तो इसका बहुत डिमांड था। दूसरा है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। आप बोलोगे सर हैंडीक्राफ्ट में क्या है? अरे भाई, अभी भी बैम्बू का बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट में बनता है और ईस्ट में बनता है, तो उसका भी डिमांड उस जमाने में था। ठीक है, फिर क्या लेते थे? सॉल्ट पेटर। ठीक है, सॉल्ट पेटर लेते थे। ठीक है, यही सब चीज चलता था। तो बंगाल वॉज रिचेस्ट प्रोविंस, और उस समय का बंगाल जो था, पोर्शन ऑफ बिहार, पोर्शन ऑफ बिहार है, टोटल बिहार नहीं है मेरे भाई, ईस्टर्न बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस पोर्शन ऑफ उड़ीसा, पोर्शन ऑफ उड़ीसा था। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को गवर्नरशिप मिला। बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल क्या था? प्रोविंस था। प्रोविंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू जागीर्स। ठीक है, जागीर। ठीक है, जागीर किसका होता था? जमींदार्स। एंड दीज जमींदार्स वेर गिवन जागीर बाय द मुगल एम्पर। तो ये जो गवर्नर आया है, तो ये जमींदार मुगल एम्पर का गाना गाएगा कि इसका बात मानेगा? ये जो गवर्नर आया है बंगाल में, जमींदार उसका बात सुनेगा या मुगल एम्पर का बात सुनेगा? whom will जमींदार लिसन टू? देखो, जब ये फर्स्ट टाइम आया ना, फर्स्ट टाइम, तो जमींदार लोग इसका बात नहीं सुना, गवर्नर का। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए, तो आप मुझे बता रहे हैं कि सर आपको क्या सब, क्या पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए। 3-4 क्लास पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सर को पता है या मुझे पता है। ठीक है, तो इसका बात नहीं सुना, तो इसने बोला कि बेटा जमींदार, तुम निकलो बंगाल से। ठीक है, और आपको इसका जमींदारी दे दिया उड़ीसा में।
सारे जमींदार को ट्रांसफर किया उड़ीसा, तभी उड़ीसा स्पेलिंग था। ठीक है, बंगाल के पोर्शन में ही था ना, तो सबको ट्रांसफर कर दिया उड़ीसा, बोला वहीं पे मजा करो। ठीक है, और यहाँ पे री अपॉइंटमेंट किया जमींदार्स का, री अपॉइंटमेंट। और यहां पर जिसको री अपॉइंट किया वो किसका आदमी होगा? हिज सर्वेंट्स। ठीक है, और इससे क्या किया, कंसोलिडेट किया अपना पोजीशन। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? देखो, ये आ तो गया था आपका बंगाल में, मुर्शिद कुली खान फरूख शियार के समय में। ठीक है, फरूख शियार के समय में, पर इसको अपना पोजीशन कंसोलिडेट करने में टाइम लगा। ठीक है, पोजीशन इसका कंसोलिडेट हो जाता है ड्यूरिंग मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। शाह, ठीक है, फरूख सियार के टाइम में ये भाग आता है, गवर्नर बन जाता है। तब तक फरूख सियार कब तक जिंदा है? 1719 तक। ठीक है, तब तक चुपचाप रहता है, एज ए गवर्नर रहता है। क्यों चुपचाप रहता है? क्योंकि दिल्ली में अभी भी सैयद ब्रदर्स जिंदा हैं। ठीक है, सैयद ब्रदर्स के मरने के बाद है ना, ये सारे गवर्नर आते हैं अपने गवर्नरशिप। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बंगाल में आया, पैसा भिजवा दिया ऊपर। ठीक है, तो इसको गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा भी मिल गया था। ठीक है, तो उड़ीसा में ट्रांसफर कर दिया। ज्यादातर यही होता था, जो बंगाल कवर करता था उसी को उड़ीसा मिलता था। ठीक है, और एक डेप्यूटी रखा जाता था बिहार में। बिहार में एक डेप्यूटी रखा जाता था, क्योंकि बिहार भी रिच प्रोविंस थी ना, तो वहां पे भी एक डेप्यूटी रखा जाता था। ठीक है, तो ये जब पावरफुल हो गया बंगाल में, ठीक है, और उड़ीसा कवर कर लिया। ठीक है, बंगाल में डेप्यूटी था, डेप्यूटी सूबेदार। ठीक है, तो जब फरूख शियार मर गया, मोहम्मद शाह रंगीला आया, इसका पोजीशन कंसोलिडेटेड हो गया, तो ये कैपिटल बनाता है ढाका से हटा करके। ठीक है, ढाका से हटा करके एक कैपिटल बनाता है, उस कैपिटल का नाम है मुर्शिदाबाद। 1 मिनट का मुझे ब्रेक दो, मेरी कुक आई हुई है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये अपना ढाका से कैपिटल जो है ये मुर्शिदाबाद ले आया। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ठीक है,
तो नाम में दम है मुर्शिदाबाद, तो नाम क्या है? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। तो ये मुर्शिदाबाद अगर आप जाओगे ना, अगर गूगल करोगे तो लखनऊ से ज्यादा खूबसूरत है, पर उसको प्रमोट नहीं कर पाया है वेस्ट बंगाल एज ए टूरिज्म हब। मेरे घर से भी ज्यादा दूर नहीं होगा, मेरे घर से मुश्किल से 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर मतलब मेरे घर से पटना से ज्यादा दूर नहीं है। मेरा घर यहाँ है भागलपुर, इधर है पटना, मुर्शिदाबाद इधर है। ठीक है। तो मेरे घर से नजदीक है मुर्शिदाबाद। ठीक है। पर हम भी कभी मुर्शिदाबाद नहीं गए हैं। पर बहुत सारे लोग इधर काम करते हैं रेलवे में। तो मुर्शिदाबाद इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। पर एज ए टूरिज्म स्पॉट है ना, वेस्ट बंगाल इसको इंडिया में प्रमोट नहीं कर पाया, ये वेस्ट बंगाल की गलती है। ठीक है। मुर्शिदाबाद इज मोर ब्यूटीफुल देन लखनऊ, ऐसा बोला जाता है। कोई लखनऊ से है तो बुरा मत मान लीजिएगा। ठीक है। आई हैव टॉट इन लखनऊ फॉर 11 months, एंड लखनऊ इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। मुर्शिदाबाद का प्रॉब्लम क्या है, अभी बांग्लादेशी सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो गया है उधर, तो उसका लोकल कल्चर जो हुआ है वो खत्म हो गया है। ठीक है। तो मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया मुर्शिद कुली खान। ये मर जाते हैं आपके 1727 में। ठीक है। डेट याद रखना नहीं है, डेट रफली याद रखा जाता है। मैं टीचर हूं तो मुझे रखना पड़ता है। ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर आपने गलत डेट बता दिया। ठीक है। उसके बाद आता है आपका शुजा उद्दौला। शुजाउद्दीन, सॉरी। ठीक है। 1727 से 1739 ये रहता है। ठीक है। इसका अचीवमेंट बस यही है ना कि बिहार को भी बंगाल है, पूरा बिहार, पूरा बिहार बंगाल में डाल दिया जाता है। ठीक है। इसको पूरा बिहार मिल जाता है। पहले ईस्टर्न पोर्शन ऑफ बिहार सिर्फ मिलता था, अब पूरा बिहार मिल जाता है। ठीक है, बंगाल में। ठीक है। बस इसका अचीवमेंट इतना ही है। इसको, इसके बाद इसका बेटा आता है सरफराज खान। ठीक है। इसको मार के डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार, डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार या डेप्यूटी गवर्नर कहते हैं उसको, डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बिहार, वो बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है। इसका नाम है अली वर्दी खान। देखो, मुर्शिद कुली खान के बाद अगर किसी में दम है तो यही है। ठीक है। ये मुर्शिद कुली खान के समय में रेवेन्यू ऑफिसर था बिहार में, और इसमें दम था। ठीक है। अली वर्दी खान में। तो ये सरफराज खान को मार देता है। ठीक है। कब मारता है सरफराज खान को? 1740 में। क्यों डेट बताना जरूरी है? क्योंकि वहां पे बैठा हुआ है मुगल बादशाह। ठीक है। उसका नाम क्या है? 1719 से लेके 1748 तक। ठीक है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम में कौन रूल कर रहा था? सरफराज खान। मैंने आपको बोल दिया था कि मुगल के नाम में रूल करते थे। तो मुगल के नाम में रूल करते थे और इसको किल कर दीजिएगा तो मुगल्स को बुरा नहीं लगेगा? पब्लिक के नाम में तो अभी भी आप मुगल के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अली वर्दी खान बोला सॉरी। तो बोला सॉरी से क्या होता है? तो बोला ₹2 करोड़। ठीक है। ₹2 करोड़ इसको दिया और बोला सॉरी। ये बोला यू आर नवाब ऑफ बंगाल। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? Understood, sir. क्या समझे आप? पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं।
ठीक है, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है, पैसा देने से बहुत कुछ होता है। नवाब तक बन जाता है आदमी बंगाल का। कुछ सीखिए लाइफ में। ठीक है। ठीक। उसके बाद है आपका, हाँ ये सब जब आप आईएएस बन जाइएगा तो आपको यही सब चीज काम आएगा। सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लिया जाए। मुझे एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे यूपीएससी में। ठीक है। अली वर्दी खान जो होता है ना, उसका एक ये बेटी के लड़के को क्या बोलेंगे, आ, नाती बोलते हैं। ठीक है। मैटरनल ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान का। ठीक है, अली वर्दी खान का मैटरनल ग्रैंडसन। ठीक है। अली वर्दी खान 1740 से लेके 1756 तक रहा सूबेदार। ठीक है। एक्सेप्शनली टैलेंटेड आदमी था, क्योंकि मेहनत के दम पे ऊपर आया था। मैन ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट, कमांड ओवर रेवेन्यू। इसको कोई बेटा नहीं था। ठीक है। तो इसका जब डेथ हुआ तो इसके मैटरनल ग्रैंडसन सिराज उद्दौला को बना दिया नवाब। ठीक है। देखो, जब आपको बैठे बिठाए नवाबी मिल जाए ना, तो आपको समझ नहीं आता है करना क्या है। ठीक है। तो अली वर्दी खान को कमांड था रेवेन्यू में, और इसके समय में भी इसको सरदर्द होता था यूरोपियन से। ठीक है, यूरोपियन पावर से। ठीक है। तो यूरोपियन पावर्स जो थे, इसके समय में भी इसको सरदर्द होता था। ठीक है। लेकिन ये इसका कहना था, यूरोपियंस आर लाइक बी। बी का मतलब हनी बी। ठीक है। दे विल स्टिंग यू एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ लव, हनी। अब समझ में आया, पुराने मूवी में वाइफ को क्या बोलता है हीरो, हनी। ठीक है। बिकॉज सी ऑल्सो प्रोवाइड्स हिम विथ लव, एंड द इफ हीरो इज नॉट लॉयल टू हर, सी विल ऑल्सो स्टिंग हिम। ठीक है। तो यही बात बोला कि यूरोपियन पावर्स और यूरोपियन ट्रेडर्स आर लाइक हनी। नो, विथ नो डिसरिस्पेक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो बोला कि उससे शहद ले लो और उसको कंट्रोल में रखो। ठीक है। तो इस आदमी ने लाइफ में मेहनत की थी ना गुरु, तो इसको पता था। ये बैठे बिठाए इसके मरने के बाद बन गया नवाब। ठीक है। इसने इसको अपना सक्सेसर बना दिया। ट्रेनिंग व्रोनिंग तो दिया, पर लाइफ में आप सब चीज ले सकते हो, जिंदगी में एक चीज आपको कोई नहीं दे सकता, वो है एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं तजुर्बा। ठीक है। तो ये इन एक्सपीरियंस था। ठीक है। और कहाँ पे बैठा हुआ था, मुर्शिदाबाद में। सेंटर कहाँ था ब्रिटिशर्स का, कैलकटा। उस समय इसका नाम कैलकटा ही था। ठीक है। और ढाका छोड़ दिया था। तो ढाका में जब छोड़ दिया था ना, तो अली वर्दी खान की एक और बेटी थी, उसका नाम था घसीटी बेगम। बहुत सुंदर थी, नाम पे मत जाइएगा। घसीटी बेगम। मैंने फोटो देखा है, फेसबुक प्रोफाइल नहीं रहे, फोटो देखा है हिस्ट्री में। बहुत सुंदर थी। ठीक है। तो घसीटी बेगम का मन था कि सिराज उद्दौला ने नहीं बने नवाब, उसका बेटा बने। ठीक है। ये कहा थी, ढाका में। भागलपुर के सामने गंगा नदी है, गंगा नदी के उस पार एक जगह है पूर्णिया। वहां भी जमींदारी होती थी छोटी छोटी। वहां पे एक आदमी बैठा था, उसका नाम था शौकत, शौकत जंग।
उसका भी मन था कि सिराज उद्दौला जो था वो 21 साल का लड़का था, बहुत ज्यादा हॉट हेडेड था, तो इसको भी कुछ बोल दिया होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया होगा एफबी पे, तो इसका भी मन इससे खराब था। तो यहाँ पे जो कलकत्ता में आदमी बैठा था ना, उस आदमी का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ही वॉज ए मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैलिबर। इसका ये काम क्या करता था, ये क्लर्क था, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, पर ही वॉज ए मैन ऑफ कैलिबर, ठीक है। और इसने अपने लोअर डिवीजन क्लर्क से जाकर के हेड बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। इतना इसमें कैलिबर है कि ब्रिटेन, जहां पे आप रॉयल्टी से होने चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, वहां पे ये आदमी क्लर्क से जाकर के हेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है। इसमें बहुत कैलिबर था। तो ये तमाशा देख रहा था कि हो क्या रहा है गुरु, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ डिलीट करूँ आपको समझाने के लिए इधर। कैन आई डिलीट रेस्ट ऑफ द पोर्शंस? Yes, sir. ठीक है। तो ये आदमी सोच क्या रहा था, ये आदमी सोच रहा था कि गुरु करना क्या है, ठीक है। तो इसने सोचा कि चलो, इस आदमी को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था एंग्लो फ्रेंच वॉर का। मैं बता दूंगा बाद में, एंग्लो फ्रेंच वॉर, इसको एंग्लो कर्नाटिक वॉर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका के नवाब को इसने बनाया था, ठीक है। आर्कॉट और कर्नाटक के नवाब के बीच में इसने बनाया था पपेट रूलर्स। तो इसको ये तजुर्बा था, ये ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस लेके आ चुका था, ऑलरेडी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ गया था, तो इसको पता था कि यहाँ पे होना क्या है, ठीक है। तो इसने बोला घसीटी बेगम को कि आप सही हो, ठीक है। और सिराज उद्दौला जो था वो 21 साल का लड़का था, खून उसका गर्म था, ठीक है। खून गर्म था तो बंगाल क्या था ना, कि बंगाल में उस समय एक चेंज हुआ था, ठीक है। अली वर्दी खान वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर राइजन टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो उस समय बंगाल में ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होते थे और बैंकर्स वो पावरफुल होते थे। मर्चेंट्स एंड बैंकर, देखो ईटानगर में कौन पावरफुल होगा, मर्चेंट्स, बैंकर या पॉलिटिशियन? आपसे फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं, ईटानगर में कौन पावरफुल होगा, मर्चेंट, बैंकर, Politicians. पॉलिटिशियन? मुंबई में कौन पावरफुल होगा, पॉलिटिशियंस या मर्चेंट्स? Merchants, sir. क्यों? क्योंकि अंबानी वहीं पे है, अदानी वहीं पे है, ठीक है। तो हर जगह का अपना एक नेचर होता है। दिल्ली में कौन पावरफुल होगा, पॉलिटिशियंस, राइट। तो उस जमाने में बंगाल में जो पावरफुल हो गए थे वो थे मर्चेंट्स और बैंकर्स, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा कमर्शियल हब था। तो इसमें जो पूरे बंगाल का बैंकर था उसका नाम था जगत सेठ, ठीक है। ये जगत सेठ जो था ये राजस्थानी था, मतलब मारवाड़ी लोग आज से नहीं जा रहा इधर उधर, उस जमाने से जा रहा है। तो ये जो जगत सेठ था इसको कहा जाता, ये टाइटल है जगत सेठ, उसका ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता है। जगत सेठ का मतलब था बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। इतना पैसा था इसके पास, इतना पैसा था, इसको कहा जाता था बैंकर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उस जमाने का ये क्या था, अंबानी प्लस अदानी। आपने ईशा अंबानी का नाम सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना है ईशा अंबानी का नाम? यस सर। बहुत सुंदर है, पर सुंदरता उसकी क्वालिटी नहीं है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी है कि उनके नाम के पीछे है अंबानी, ठीक है।
ठीक है। अंबानी है तो बहुत पैसे वाली हैं। उनकी शादी देखी है आप? आपको तो बुलाया नहीं होगा, मुझे भी नहीं बुलाया था, पर यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है। उनकी शादी में खाना कौन खिला रहा है बारातियों को मालूम है? बॉलीवुड स्टार्स। दे आर सर्विंग फूड टू द बारात। ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप जाके देख लेना, बॉलीवुड का ऐसा कोई स्टार नहीं है जो यहाँ पे खाना नहीं खिलाया है। ठीक है। और बाद में उन्होंने बोला कि वी आर फैमिली मेंबर्स, सो वी वेर सर्विंग फूड। ठीक है। ठीक है। फैमिली मेंबर्स तो वो मेरे भी हैं, पर मेरे यहाँ के खाना नहीं सर्व करेंगे वो, आई नो इट। ठीक है। तो पैसे में बहुत दम होता है, तो जगत सेठ को रॉबर्ट क्लाइव बोला कि भाई सिराज उद्दौला को हटाओ, ये सही से बिजनेस उजनेस करने नहीं देगा। ठीक है। तो भाई जगत सेठ मान गया। अब जगत सेठ पैसा नहीं देगा तो सिराज उद्दौला करेगा क्या? ठीक है। सिर्फ मारवाड़ी लोग तभी नहीं घूमते थे हर जगह, पंजाबी लोग को भी घूमने का आदत था। तो एक और सेठ था, उसका नाम था अमीचंद। ठीक है। ही वॉज मर्चेंट। ठीक है। जब इन लोगों को अपने साथ मिला लिया तो इसने सोचा कि व्हाई नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब, आई शुड ऑल्सो involve him in this. So, who was commander in chief of Nawab? The commander in chief of Nawab was मीर जाफर। ठीक है। ये कमांडर इन चीफ था तो उसको कहते थे मीर बख्शी। ठीक है। जो कैलकाटा का ऑफिसर इंचार्ज था उसको भी मिला लिया, उसका नाम था मानिक चंद। ठीक है। और जब मीर बख्शी आएगा तो ये अपने साथ एक और कमांडर को मिला लेगा ना, जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम था खादिम खान। तो मिला लिया। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपको, ये सब कहानी कब की चल रही है? 1757 की कहानी चल रही है। ठीक है। मैं इससे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 100 साल, 1651 में, कुछ चीजें समझाने के लिए। ठीक है। हिस्ट्री में देर आर नॉट जस्ट फैक्ट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस फैक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है। जैसे कल एक बच्चे ने बोला कि सर मैं फ्रेशर हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है सिलेबस कितना बड़ा है। तो मैंने बताया कि फ्रेशर है तो आपको कम से कम 12 महीने का कोर्स करना था, 12 मंथ्स। नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है। स्मार्ट वर्क अगर कर लेंगी 2 मंथ्स तो सी विल क्लियर इट। ठीक है। पर मेंस में फिर मेहनत करना होगा रिलेंटलेसली टिल द फाइनल मेरिट लिस्ट कम, एंड सी विल बी एबल टू अचीव, आई एम श्योर। अगर सिर्फ मेहनत कर लेगी और फॉलो कर लेगी बात तो कर लेगी। तो 1651 में इसलिए जाना है क्योंकि उस समय कुछ हुआ था जिसका असर 1757 में हुआ। हु वॉज द किंग ऑफ, हु वॉज द मुगल एम्परर देन? 1707 में आपका औरंगजेब मरा। 50 साल रूल किया है ये बाबू। ठीक है। तो ये 1658 में आया था। तो 1651 में कौन होगा उस समय? शाहजहां। शाहजहां। ठीक है। शाहजहां के थे 3 बेटे। दारा, जिसको कहा जाता है सेकंड अकबर। लिख लीजिए, सवाल आ जाएगा एग्जाम में तो बोलिएगा सर मिडाइवल हिस्ट्री नहीं पढ़ाए थे, मेंशन तो कर दिए। ही इज ऑल्सो नोन एज, ही इज ऑल्सो नोन एज सेकंड अकबर।
ठीक है। सेकंड अकबर। तो ये रहते थे शाहजहां के साथ। कहाँ पे रहता था शाहजहां के साथ? दिल्ली, आगरा, यहीं रहते थे। दारा, सुजा और मुराद। ठीक है। औरंगजेब कहाँ था? डेक्कन में। बंगाल में इसका भाई था सुजा। ठीक है। बंगाल में इसका भाई था सुजा। तो अब है, किंग है तो कुछ हरकतें भी होंगी ना इसकी। ठीक है। तो इसकी एक रॉयल लेडी थी। डोंट आस्क मी द मीनिंग ऑफ रॉयल लेडी, दिस क्लास डज नॉट परमिट मी टू आंसर दैट। ठीक है। आप उसको स्कॉर्पियन अंकल से कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है। तो रॉयल लेडी थी। तो इस रॉयल लेडी का हुआ तबियत खराब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यूरोपियन लोग था, उन्होंने अपना डॉक्टर भेजा, उसका नाम था डॉक्टर बाउटन। कोई जरूरी नहीं है याद रखने का। ठीक है। तो डॉक्टर बाउटन को ने इस लेडी को ठीक कर दिया, और ये लेडी सुजा को बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। ठीक है। इसके बिना रह नहीं सकता था। तो इसने बोला कि भाई 3,000 रुपया का पेमेंट करो। ठीक है। और बंगाल में जो ट्रेड करना है करो, इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया। फ्रेंच को नहीं बोला, डच को नहीं बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन था? इंग्लिश लोग था। तो इन लोग के मुंह में लग गया खून कि अच्छा 3,000 रुपया देके फ्री ट्रेड। ठीक है। ठीक है। तो जो तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको फ्री ट्रेड मिल गया बंगाल में। ठीक है। 3,000 के बदले। पर ये बात क्या शाहजहां को पता चली? नहीं पता चला ना, ये मैनेज कर लेता था कहीं से कहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में जाकर के ये ले लेता है। उसके बाद फरूख शियार जो होता है ना, उसकी बेटी को भी कुछ हो जाता है। तो उसके बदले में पेंसिलिन दे देता है। पेंसिलिन देने के बाद मलेरिया हो जाता है, पेंसिलिन देने के बाद ठीक हो जाती है। तो 1717 में फरूख सियार से ले लेता है दस्तक। ठीक है। ये एक तरह से पास था। ठीक है। पास किसको मिला है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है। पास का मतलब था कि भाई इसके बदले में तुमको फ्री ट्रेड मिलेगा, लेकिन यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। ठीक है। गलत नहीं था, ठीक था उस समय भी। ठीक है। इनर लाइन परमिट मिल गया इसको। ठीक है। अब मिला था कंपनी को, कंपनी सब बांग्लादेशी को घुसा रही है, तो गलत है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ, जितना भी उसका खुद का ऑफिसर था, वो भी अपना ट्रेड शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडियन जो मर्चेंट्स थे उनको भी दस्तक दे देता था कि भाई तुम्हारा भी ट्रेड हो रहा है, तुम भी दस्तक यूज कर लो। तो ये इन्फ्uriएट कर दिया 1757 में जाकर के सिराज उद दौला को। उसका हो गया माथा गरम। वो आया मुर्शिदाबाद से, और कोलकाता में, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की थी, अपना ट्रेंचेस खोद ली थी अराउंड इट्स फोर्ट, फोर्ट विलियम्स, ऑन द प्रिटेक्स ऑफ सेविंग इटसेल्फ फ्रॉम द मराठाज रेड। मराठा लोग खूब रेड मारता था, छापामारी युद्ध। ठीक है। तो ये मुर्शिदाबाद से आया नवाब, और इसको यहां पर आके कैप्चर कर लिया फोर्ट विलियम को, क्योंकि इसको पता था कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर में हुआ क्या है। साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करने लगी है हु विल बिकम द नवाब। तो ये इसे पता था, तो इसने आके कंपनी को
कैप्चर कर लिया फोर्ट विलियम्स में। इसको बोला था तुम भाई फोर्टिफिकेशन नहीं करेगा, तुम यहाँ पे कोई भी फोर्टिफाइंग नहीं करेगा। ये यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनेशन रखना शुरू कर दिया, फोर्टिफाइंग कर लिया। ठीक है, तो ये आके कैप्चर कर लिया। ये कैप्चर करने के बाद क्या किया ना, हरा दिया, और हराने के बाद बोला अब होगा पार्टी, और चला गया मुर्शिदाबाद पार्टी मनाने। फोर्ट विलियम्स के बगल से जाती थी नदी हुगली। फोर्ट विलियम के बैक डोर से जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था वो लोग हुगली नदी में बोट पकड़ा और चला गया। एक आइलैंड था फुल्टा, बे ऑफ बंगाल में फुल्टा, ज्यादा दूर नहीं था, कोलकाता से ज्यादा दूर नहीं है। सी 100-150 किलोमीटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100 भी नहीं है, 100 ज्यादा बोल दिया। 50-60 किलोमीटर में आप रिवर के थ्रू पहुंच जाइएगा फुल्टा आइलैंड। फुल्टा आइलैंड इसलिए गया क्योंकि बंगाल जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, तो वहां पे उसको सपोर्ट मिल गया, वहां पे चला गया। और ये तब पॉसिबल हुआ जब मुर्शिदाबाद का जो नवाब था वो कोलकाता हवाला करके चला गया मानिक चंद को। मानिक चंद तो मिला हुआ था ना मीर जाफर से, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा, साउथ इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आया था कि कैसे दूसरे को नवाब बनाना है। इसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया मीर जाफर को, और बोला विल यू बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर को लगा जब 21 साल का लड़का बन सकता है तो व्हाई नॉट मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव तुरंत घसीटी बेगम जो थी उसको भी लिया अपने कॉन्फिडेंस में, फेसबुक में जाके उसको मैसेज किया, बोले आई वॉन्ट टू रिमूव सिराजुद्दौला। ठीक है, मीर जाफर को बोला तुम बाकी लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो, एडमिन राइट्स दे दिया। मीर जाफर उन सबसे बात करने लगा। रॉबर्ट क्लाइव जगत सेठ को कांटेक्ट किया, बोला कि भाई तुम्हारा जो है ना इतना पैसा कमाए हो ना, ये नवाब ले लेगा 21 साल का। तो जगत सेठ भी रॉबर्ट क्लाइव के साइड आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये यहां से अपना कैवलरी लेके पहुंचा पलासी। ठीक है, 1757 पलासी जो है इट इज 30 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। ठीक है, एंड इट वॉज ए फॉरेस्ट मेड अप ऑफ पलास ट्री। पलास ट्री को सर्च करोगे तो फॉरेस्ट फायर के नाम से एक ट्री आती है, तो उसी के नाम पे इस जगह का नाम पलासी पड़ा था। पर इस फॉरेस्ट के पास ही मैंगो ग्रूव्स थे बहुत बड़े। ठीक है, तो वहां पे जाके ये शेल्टर ले लेता है। ठीक है, उधर से सिराज उद्दौला आता है। ठीक है, इसके एक छोटे से सेना के टुकड़ी का हीरो था मीर मर्दन, मीर मारदन या मीर मदन। ठीक है, मीर मर्दन। दूसरे छोटे से टुकड़ी का लीडर था मोहन लाल मंडल। इसको मोहन लाल लिखा है पर इसका ओरिजिनल नाम मोहन लाल मंडल था। इसका कमांडर इन चीफ था मीर जाफर। मीर जाफर तो मिला हुआ था ना रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, और इसने आपके अपने अंदर सबको मिला लिया था। गलती से ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस दोनों को नहीं ऐड कर पाया। ठीक है, तो ये लोग फाइट किया बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ठीक है, हार्डली इन लोग के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हार्डली कितना होगा, 10,000 की सैनिक होगी। ठीक है, इधर इन लोग के पास मुश्किल से
2000 का सैनिक था। ठीक है, तो ये लोग का 500 सैनिक मर गया, इसका 50 सैनिक मर गया। गलती से मीर मर्दन मर गया, गलती से एक स्ट्रे शॉट, उड़ता तीर। ठीक है, बंदूक का उड़ता गोली आकर के इसको मार दिया। मोहनलाल देखा कि भाई हम अकेले हो गए हैं। ठीक है, फिर भी ये बहुत बहादुरी से लड़ा और ये बच के निकल गया। क्यों बच के निकला? सिराज उद दौला था ना, इसको मीर जाफर का बेटा था मीरन, वो डरा दिया, बोला कि चलिए आप हार जाइएगा ये युद्ध। ठीक है, और ले जा करके इसको मार दिया। सेफ के चक्कर में इसको सेफ गार्ड ही कर दिया, सब दिन के लिए मार दिया। और ये मीर जाफर क्या किया? कुछ नहीं, स्टैंड बाय पे रहा। समझ में आया यहां तक? यस सर। तो अब कौन बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल? तो नवाब ऑफ बंगाल बनता है वीर जाफर। तो पहला गिफ्ट क्या दिए दिया? फ्री ट्रेड, जो पहले सिर्फ बंगाल में था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मिला बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। फ्री ट्रेड मिला है। आप बोलोगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या मिलेगा, तो इसीलिए यहां पे बोल रहा हूं कि बेटा ठीक से देखो, फ्री ट्रेड मिला है। ठीक है, बक्सर में कुछ और भी मिलेगा। और क्या दिया? कलकत्ता के पास एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, उसकी जमींदारी। ठीक है, ये भी दे दिया। ठीक है, बट मीर जाफर विद इन नो टाइम अंडरस्टूड that the demand of East India Company were always unwanted. अनवांटेड डिमांड, कुछ से कुछ डिमांड कर रहा है। ठीक है, इसको 2 साल में समझ में आया कि गलती हो गई। तो इसका जो सन इन लॉ था ना, मीर कासिम, सन इन लॉ था, वो बहुत ही कनिंग आदमी था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि देखो मेरा ससुर डिमांड मीट नहीं कर पा रहा है, इसको हटाओ और मुझे बनाओ। ठीक है, तो इसको बना दिया 1760 में नवाब। तो ससुर सिर्फ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट दिया था, ये 3 डिस्ट्रिक्ट देता है। बर्धमान, उस जमाने का डिस्ट्रिक्ट आज के डिस्ट्रिक्ट की तरह छोटा छोटा नहीं है। मिदनापुर, और बांग्लादेश में एक जगह है चिटागांव। ठीक है, अब उसको चिटागांव बोलते हैं, तभी उसका नाम चिटागांव था। ठीक है, पर मीर कासिम बहुत होशियार आदमी था। ठीक है, उसने बोला कि भाई इस लोग को पैसा वैसा और 3 3 जगह की जमींदारी देने से फायदा नहीं है। इसने अपना कैपिटल ट्रांसफर कर लिया मुंगेर। भागलपुर के बाद मुंगेर एक जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्यों ट्रांसफर किया बताता हूँ। ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपके एग्जाम में जब पूछ सकता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ट्रांसफर किया था, तो क्या आपके एग्जाम में ये नहीं पूछ सकता है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ट्रांसफर किया था, कैपिटल ऑफ बंगाल? इसी को कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों देखा जाता है। अब समझ में आया आपको क्यों देखा जाता है? अभी तक आपको नहीं समझ में आया था कि क्यों देखा जाता है, बोल बोल के आदमी थक गया था, पर आपको समझ में नहीं
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है क्या पूछा है, वो तो पता चल जाता है देखने से। समझदारी उसी में है जो समझे क्या पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं बोला कि मैं आपका पेपर जानता हूं क्या पूछेगा, तो मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है, मेरे तरीके से। तो जब आपसे पूछ सकता है कि हु ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, तो आपसे ये भी पूछ सकता है हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। आंसर इज मीर कासिम। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है। तो ये मुंगेर ट्रांसफर किया था ना, तो इसका पर्पस था, देखो कुछ चीजें मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इसका पर्पस क्या था मुंगेर ट्रांसफर करने का? इसका पर्पस था मुंगेर ट्रांसफर करने का कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नजरों से दूर रहेंगे। मेरी वाइफ थोड़ी है कि हम उसके नजर के सामने रहेंगे। और नजरों से दूर रह के करेंगे एक खेल, मुंगेर के पास बनाएंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है। मुंगेर टिल डेट दो चीज के लिए फेमस है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए और टोबैको के लिए। अभी तो टोबैको होता है, तो ओपियम भी होता होगा वहां पे कभी। ठीक है। तो एक डच ट्रेडर्स को बुलाया अपने पास कि आओ और देखो ओपियम का काम। ठीक है। ठीक है, बुलाया। ये बात पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को पेट में हुआ दर्द, वो जाके मुंगेर फोर्ट, मुंगेर में फोर्ट है अभी भी, ठीक है, उसका तलाशी ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पटना का एजेंट, एजेंट जाकर के नवाब के घर का तलाशी ले लेगा। नवाब को बुरा नहीं लगेगा? नवाब को लगा बुरा। नवाब गया सीधे अवध, वहां पे बनाता है ट्रिपल अलायंस। ठीक है, वहां पे जाके बनाता है ये ट्रिपल अलायंस। ठीक है। तो ट्रिपल अलायंस किसके साथ बनेगा? तो जो नवाब ऑफ अवध होगा उसके साथ बनेगा ना जी। ठीक है। प्लस मुगल एम्परर का ये एजेंट है। अब इसको याद आया मुगल एम्परर का कि भाई हम उसके एजेंट थे, तब तक वो भूल गया था। ठीक है। जब कमजोर हुआ तो अपनों की याद आई। शाह आलम टू। ठीक है। तो जाके ट्रिपल अलायंस बनाता है। और फिर होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल का आउटकम क्या होता है? व्हाट वाज परसीव्ड, व्हाट वाज परसीव्ड इन प्लासी was confirmed in बक्सर। देखो एक चीज देखो, 1761 में ना मराठा वॉर हार गया है आपका, पानीपत का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास हार गए हैं। ठीक है। पर मराठा डिस्ट्रॉयड नहीं हुए। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली 5 रेड मारता है, 1748 से लेके 1767 तक 5 रेड मारता है। सब लोग बताता है कि 5 रेड में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, नहीं, मराठा उसको 1767 में वापस हराते हैं एंड दे अवेंज पानीपत। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसने ये सब चीज को हाईलाइट नहीं किया। दैट्स द रीजन मराठा पावरफुल रहे ना। तो 1767 में वो अहमद शाह अब्दाली को हराते हैं वापस। कौन हराता है? माधवराव। ठीक है। पेशवा माधवराव, महादजी सिंधिया। नाना फडनवीस।
क्या हुआ था ना कि बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठा लीडर था वो था सदाशिवराव भाऊ। ये थे ब्राह्मण। जो मराठा ओरिजिनल थे वो थे कुणबी। इसको एक कुर्मी भी बोला जाता है बिहार में, यूपी में। सेम कास्ट है दोनों। कैस्टोरल पेजेंट्री ट्राइब है। ठीक है। और शिवाजी ने कभी कास्टिज्म किया ही नहीं। तो इसमें जो एक और लीडर थे मराठास के, उनका नाम था मल्हार राव। वो धनगर थे। ठीक है, पर शिवाजी ने सबको मिला लिया था मराठा में। ठीक है। ये एक्चुअल लीडर थे। इसका बात ये नहीं माना सदाशिव राव भाऊ। इनको सही में आइडिया था कि जितना कैसे है, अगर इनको लीडरशिप मिलता तो ये जीत जाते। ठीक है, इसका बात ही नहीं माना ये सदाशिव राव भाऊ। उसको बहुत ज्यादा अपना सेंस ऑफ सुपीरियरिटी था। ये उस समय के राइटर लिखते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। तो महाजी सिंधिया उस समय एकदम यंग आदमी थे और इस बैटल में वो जिंदा बच गए थे। मिराकुलसली महाजी सिंधिया और राणा फडणवीस जिंदा बच गए। ठीक है। तो उस समय के पेशवा का डेथ हो जाता है सुन के खबर कि हम लोग बैटल हार गए। उसको बहुत बुरा लगता है। बालाजी बाजीराव वो मर जाता है, बालाजी बाजीराव। तो एक यंग लड़का आता है माधव राव। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है। ये इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देता है और इन लोग के लीडरशिप में वापस फाइट करते हैं मराठा 1767 में और अब्दाली को हराते हैं। इसीलिए अब्दाली वापस नहीं आ पाया। ठीक है। 1748 में अभी आया था। उस समय भी रघुनाथ राव ने जाकर के उसके लीडर को हराया था। ठीक है, वो छोटी लड़ाई थी। तो 1761 में जब मराठास हार गए थे ना, तो वो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो गए थे, क्योंकि महाजी सिंधिया एकदम यंग लड़के थे उस समय। यंगस्टर थे। नाना फडणवीस भी यंगस्टर थे। तो यही लोग बचे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बैटल ऑफ पानीपत डिड नॉट ब्रोक मराठास बिकॉज इट गेव रीबर्थ टू द मराठा लीडरशिप एंड दीज लीडर्स वेर महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। उस बैटल में हारने के बाद भी देर इज नो फुल स्टॉप टू द मराठास। ये इतिहास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आदमी हारने के बाद भी अपने आप को रिबिल्ड करता है। मराठास ओनली लॉस इन बैटल ऑफ पानीपत वाज लॉस ऑफ मैन पावर। ऐसा कोई घर नहीं था महाराष्ट्र से जहां से एक आदमी उस बैटल में ना मरा हो या बंदी ना बना हो। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है हिस्ट्री में कि कैसे मराठास अपने आप को इन क्विक टाइम रीबिल्ट देमसेल्फ। ठीक है। तो ये एक सवाल आपको मेंस में आएगा यूपीएससी में। तो इस तीनों आदमी का नाम याद रखना। ठीक है। तो आपको मल्हार राव को लीडरशिप मिलता तो जीत जाता, पर ये हार गया तो मराठा हार गए थे। तो 1761 डिड नॉट कंफर्म्ड हु विल रूल इंडिया, इट कंफर्म्ड हु विल नॉट रूल इंडिया। जब तक महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस जिंदा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी साइड में रही 1803 तक। ठीक है। लेकिन उनके मरने के बाद 1813 तक आते आते पूरा मराठा खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत में अगर मराठा जीत गया होते तो जाके बैटल ऑफ बक्सर में भी मराठा जीत गए होते। ठीक है। लेकिन जब वो हार चुके थे तो वो ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुके थे अपने आप को। ठीक है। तो इट कंफर्म्ड हु विल नॉट रूल इंडिया, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। तो पलासी में तो झगड़ा नहीं हुआ था ना। पलासी में कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी। स्कर्मिश स्किर्मिश हुआ था। छीना झपटी हुई थी। बैटल हुआ ही नहीं था। पार्टिसिपेशन ही नहीं था। ठीक है। कंफर्म्ड इन बक्सर। ठीक है। इट वॉज कंफर्म्ड इन बक्सर। ठीक है। तो पलासी में जो ट्रिपल अलायंस बना इसको हरा दिया गया। ठीक है। अब इसको हराने के बाद क्या हुआ? अच्छा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था उसका नाम था
मुनरो। ठीक है, तो ही डिफीटेड ट्रिपल अलायंस इन बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो अब वापस क्लाइव को बुलाया जाता है कि भाई तुम ही लड़ाई शुरू की हो, तुम ही बताओ कि इस बैटल के बाद करना क्या है। ठीक है, तो मीर कासिम था। ठीक है, मीर कासिम हार गया था। ठीक है, वॉज डिफीटेड, सॉरी, मीर कासिम कहते हैं, मीर जाफर वॉज डिफीटेड। ठीक है, तो मीर जाफर का डिफीट हो चुका था। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बोला था कि फ्री ट्रेड मिला था जब मीर जाफर बना था ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से, नवाब ऑफ बंगाल। तो यहां पर तो उससे बड़ा कुछ चाहिए था ना, तो सारा का सारा दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ले ली। किससे ली? मुगल एम्परर से ली। कौन था? शाह आलम टू। ठीक है, इनसे ले ली। ठीक है, और जो नवाब ऑफ अवध था, ठीक है, उसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला। ठीक है, इसको बोला कि आप मेरे सबऑर्डिनेट रहिएगा हमेशा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बात बोली वो नवाब ऑफ अवध इसके बाद मानता है। ठीक है, हमेशा। इससे बोला दो डिस्ट्रिक्ट दो, अलाहाबाद एंड कारा। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ले लेता है। ठीक है, और क्या बोलता है कि आपके यहां मेरा रीजेंट रहेगा। मान लेता है, जो बोलता है मान लेता है सुजाउद्दौला को। ठीक है, तो यहां पे बैटल ऑफ बक्सर का आउटकम यही होता है कि दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके प्रीलिम्स में पूछेगा। लिख लिए? ठीक है, अब क्या करती है, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। 1765 से 72 तक दो गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्या मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को? दीवानी राइट्स, रेवेन्यू। ये ट्रीटी करता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आपके तरह नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंटेलिजेंट है। आप लोग भी इंटेलिजेंट हो, पर रॉबर्ट क्लाइव इतना नहीं हो। रॉबर्ट क्लाइव रेवेन्यू राइट्स तो लेता है, पर रेवेन्यू कलेक्ट खुद नहीं करता है। उसके लिए निजामत, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ये दे देता है आपका नवाब ऑफ बंगाल को। आप बोलोगे नवाब ऑफ बंगाल को अगर दे देता है तो नवाब ऑफ बंगाल पावरफुल नहीं होगा राइट ऑफ कलेक्शन? तो नाम के लिए देता है। इसका डेप्यूटी नवाब तय करता है, उसका नाम होता है सीताब रॉय। उसको बोलता है कि रेवेन्यू आप कलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये कलेक्ट करता है। ये सिर्फ टिटुलियर रहता है जनता की नजर में। ठीक है, और कलेक्ट करके दे देता है कंपनी को। 1772 में ये डुअल गवर्नमेंट टूट जाता है।
बंद कर देता है, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हम ही हम हैं, कोई नहीं है, तो अब हम खुद डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इस डुअलिटी को खत्म करता है कौन? इसको करता है वैरन हास्टिंग। ठीक है, ही एंड्स द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, with this your today's topic has been completed. Any doubt, ask me now. आज मुझे लगता है आज जो जो मेरा टारगेट था अचीव हो गया। कल आपको मराठास खत्म करा देंगे। ठीक है, मराठास जैसे खत्म होंगे, ठीक है, आपको मैसूर भी पढ़ाया जाएगा। मैसूर ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, उसके बाद कल आपका मराठास और मैसूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड मैसूर कल खत्म हो जाएगा। मैसूर बहुत कम टाइम लेगा, उससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे बैटल ऑफ 1757 में चले जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो तो ग्रुप में जा रहा है, रिकॉर्डिंग हुआ है ना आज। ठीक है, ये चला जाएगा ग्रुप में। ठीक है, चलो, एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ, आई एम ओपन टू डाउट्स नाउ। पर रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वीडियो अपलोड टाइम लगता है, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी मैं नाश्ता करूंगा, कुछ काम है, वहां जाऊंगा, तब तक मैं आपको शाम तक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। सर पढ़ लेगा पहले एक बार, फिर दादू ने से रीच आउट टू यू। यस यस यस, जो मैंने नोट्स दिया है ना बेटा, उसी को पढ़ो बार बार, और कुछ मत पढ़ो। और मैंने एक आपको पीडीएफ भेजा है एनसीईआरटी का, उसको पढ़ लेना। आज कोई क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि आज का टारगेट अचीव हो गया है। कल अगर टारगेट अचीव नहीं होगा, मराठास फर्स्ट हाफ में होगा, तो मैसूर सेकेंड हाफ में कर लेंगे। ठीक है, टारगेट अचीव होने से मतलब है। 2 घंटा का क्लास चल ही रहा है। ठीक है, मैंने ब्रेक लिया भी नहीं है। देखो, अभी थोड़ा सा है ना, पहले हिस्ट्री खत्म कर दो। नॉर्थ ईस्ट वाला में आपका ज्यादा नहीं है, 3-4 क्लास है। मेरा टारगेट है कि 15 तारीख तक आपका हिस्ट्री खत्म हो जाए। उसके बाद 3-4 दिन मैं आपको नॉर्थ ईस्ट का जितना रिमेनिंग है वो खत्म कर दूं। फिर फिजिकल ज्योग्राफी का 3 दिन क्लास लेना है मुझे। क्यों नहीं दे रहा हूँ नोट्स? फिजिकल ज्योग्राफी रोका हुआ है, तो मैं शायद इन बिटवीन कहीं जाऊंगा। मुझे जाना है, मेरा 6 महीना पहले टिकट बुक हुआ है। 19 तारीख से 27 तारीख तक मैं जाऊंगा। उस समय आपका नॉर्थ ईस्ट और करंट अफेयर्स कोई और ले रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आऊंगा, तो 3 दिन में आपका खत्म कराऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, या फिजिकल ज्योग्राफी अभी ही खत्म कर देंगे। उसके बाद जब मैं आऊंगा, तो सिर्फ आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन क्या आएगा, लिख लो। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये लिख लो। क्वेश्चन नहीं आया तो फिर अपना अपना नाम चेंज कर लेना। मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन क्या आएगा। G7 कहाँ हुआ है इस बार? इससे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपको आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। G7 से 100% कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आए। ठीक है, हाँ, अब एक तो भगवान के ऊपर रहता है कि अब G7 जान लिया, मेरा वीडियो आ जाएगा, बोलेगा नहीं इस लड़का को मैं प्रूव करूंगा कि एपीपीसीएस सही है, तो उसका चेयरमैन बोलेगा ये हटाओ इस क्वेश्चन को। ये आ रहा है G7। तो उसी तरह मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पता है जो आ रहे हैं। तो लास्ट 15 डेज जो मैं आपका लूंगा 12 दिसंबर तक। ठीक है, 28, 29, 30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इन बिटवीन अगर जरूरत पड़ा तो मैं जहां भी रहूंगा, आई विल बी एक्चुअली इन कर्नाटका, कुर्ग। ठीक है, फरवरी में ही मुझे जाना था वहां। ठीक है, तो मिस्टर टी इरिंग साहब, G7 का समिट वॉशिंगटन डीसी यूएसए में नहीं हुआ है। ठीक है, Italy, Italy. क्या? इटली। हाँ, तो आप
मुझे पता है सवाल क्या आएगा, मुझे पता है आंसर क्या है। जब मुझे सवाल पता है तो मुझे आंसर भी पता होगा। इसका हुआ है इटली में, ठीक है, मैं जो मेरा क्लास कर रहे हैं उनको पता है। और इसका थीम आएगा आपका यूपीएससी में। आपका क्या पूछेगा, यूपीएससी क्या पूछेगा मुझे पता है। इसका थीम आएगा यूपीएससी में। आपको एक क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा कंफर्म, मैं बता देता हूं, ब्रिक्स से। एक कंफर्म क्वेश्चन है ब्रिक्स से, ठीक है, यूपीएससी में। एक क्वेश्चन है COP16 बायोडायवर्सिटी से, यूपीएससी में, ठीक है। आपको आएगा यूपीएस, आपके पीसीएस में पूछ सकता है आपका ट्री सेंसस रिपोर्ट, ठीक है। ट्री सेंसस रिपोर्ट फर्स्ट टाइम हुआ है, कौन किया है इसको, IUCN में। तो मुझे पता है आपके यहाँ क्या क्वेश्चन आएंगे। और धीरे धीरे लास्ट 15 डेज में मैं अभी से टॉपिक बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ करंट अफेयर्स के लिए। आप बोलोगे सर शेयर कर दो, नहीं करूंगा, वो मैं क्लास जब लूंगा तभी शेयर होगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ लीजिए, जो आप बाकी आपको मटेरियल मिल रहा है वो आप कर लीजिए। जब मैं पढ़ूंगा तभी आपको टॉपिक में शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो कल देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मुझे लगता है 11 तारीख के बाद मुझे लेना चाहिए, एक वीक करंट अफेयर्स में ले लूंगा, ठीक है। देखते हैं, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, टेक केयर। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो, आप लोग को। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ मैं परेशान कैसे हो जाता हूँ। कल मैंने दिया सारे आपको MCQ, ठीक है। उसके बाद भी एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मुझे वो वाला MCQ दे दो ना। तो मैं ग्रुप में दे दिया हूँ ना। मेरे पास तो है नहीं कि मैं लैपटॉप पे हमेशा बैठा हूँ, फिर भी मैंने सर्च करके दिया, बिकॉज ही वॉज ए वर्किंग लेडी, ठीक है। चलो जो भी है, आप मेरे लिए जितना चीज आसान करोगे आपको मैं उतना दे पाऊंगा। जब मैंने आपको सारे MCQ दिए हैं तो उसको देखो ना, उसको गूगल सर्च करो ना। उसमें एक आंसर आ गया तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर ये आंसर सही है या गलत। आप गूगल सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। आई हैव अदर वर्क्स ऑल्सो टू डू ना। आपके लिए तो टॉपिक ढूंढ रहा हूँ कि क्या क्या आएगा, आपके लिए ही तो क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा गूगल भी करो, ठीक है। जितना मेहनत कर सकते हो, मैं आपका मेंस, मैं इंटरव्यू कॉल तक में आपको मदद कर सकता हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी, ठीक है। आप मेहनत करो, दिस इज व्हाट आई आस्क फ्रॉम यू, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।